that every long journey begins with a small step. On the auspicious occasion of Gandhi Jayanti, the social service group of Little Scholars organized a symposium at Ramlila Ground under the slogan of Swachh Bharat Mission. With the humble beginning, this campaign has garnered support from all the strata of civic bodies. As Rome wasn't built in a day, likewise, this campaign has met quite a few challenges, but has never looked back. Let me acquaint everyone present today with the concept of SETU, which stands for Social Enterprise Towards Unified Understanding and Undertaking. Since 2016, when a conclave was organized in school auditorium, aptly titled Utopia, SETU had been an annual event addressing various social issues. In 2017, with the adverse effects of carbon footprint leading to an increase in carbon emissions, and 2018, SETU aimed at the revival of certain virtues for a better tomorrow. In 2019, the focus was on clear water revival in the entire Tarai belt. There is a hydrological disconnect as the sources of potable water as well as feeder canals are fast depleting. The legendary Dronasagar Lake in Kashipur urgently needs its rehabilitation and revival. The previous year, on October 2nd, a webinar was conducted as the prevalent COVID situation didn't allow for any offline activity with regard to SETU. The itinerary included programs like Birds in My Backyard, with the main focus on who makes the city. This year, in 2021, our agenda checks on huge components of energy consumption, namely buildings and transportation, and its associated environmental side effects that have blended in our daily lives. Streets for me involves efficient integrated transport systems while solving associated challenges by concentrated actions. Our cities need to understand, use, and organize our spaces effectively so that all stakeholders are taken into consideration to ensure sustainable growth. Our aim in this noble cause is to look for cost effective energy efficiency options to achieve sustainability and avoid climate change. So, let me now introduce our resource persons and their proficiencies. Mr. Amit Chawla, alumni of prestigious modern school, New Delhi. He acquired bachelor's degree in architecture from Manipal Institute of Technology. Mr. Amit Chawla is a Delhi-based architect with over 22 years of experience in the field of architecture and interior designing. As a qualified green building expert, his design approach integrates aspects of sustainability and wellness into each project from the start. Mr. Saurabh Popli, leading landscape designer. He teaches architecture and landscape designs. He cherishes the goodness, simplicity, frugality, and altruism that characterize India's civilizational genius and traditional way of life. Mr. Piyush Sheikh Sarai. He is an architect and geographer by training. Piyush has a master's in urban architecture and MPhil in geography. He is also an occasional illustrator and photographer. His first love is nature, and he tries to find ways to engage with it. Mr. Farhad Contractor, eminent environmentalist and philanthropist. Farhad Contractor, with an experience of over 30 years in revival and rejuvenation of ecological systems, has worked extensively in the Thar Desert, North, South, and Central India. He has revived over 9,500 water structures in these regions and river systems in Alwar and Jaisalmer districts of Rajasthan. Vasudevan R. Kadalai. He graduated as an architect from MIT Manipal in 1995 and later completed Masters of Design Science, Energy Conservation from University of Sydney, Australia in 2010. Mrs. Maitri Mukherjee, independent researcher and consultant. She is an alumni of Institute of Rural Management with over 10 years of experience in teaching, research, and software industry. Previously, she has been a faculty member at IIM Kashipur, Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology. Ms. Aruna Bhardwaj. She is pursuing PhD in children-friendly spaces in the urban context.
Presently, she is an architecture design coordinator for the first year and the incubation coordinator for SSAA. Besides the guiding thesis and dissertation and teaching professional practice at BR program, she has taught the masters. Ms. Sonal Thanawala, Landscape Architect, Bachelor of Architecture, Academy of Architecture, Master of Architecture Landscape, School of Planning and Architecture. Mr. Nipun Prabhakar. Nipun Prabhakar was born in Delhi, India, and is currently enrolled in the Bachelor program in Architecture at School of Planning and Architecture, Bhopal. He has overarching interest in art, architecture, and photography. Now, I would like to call Ms. Aruna Bharadwaj to present her views and enlighten us. Hi, everybody. Welcome on board. So there is, with me, there is Maitri Mukherjee, Sonal Thanawala, and me, Aruna. And there is a little confusion. There are this thing that I'm presently at as the program director of EMARC, Interior Architecture at Sushant School of Art and Architecture. So there's a little confusion over there. So just clarifying that. And we have enjoyed our association. I started associated with Setu and with the competition and interacting with all the schools through this really energizing and liberating medium, this online. Even though we are not there, in our hearts we are there. So Sonal and Maitri, till Ananya ma'am presents, we can just chat a bit. Maitri ma'am, Sonal ma'am we really enjoyed our last year's interaction. I mean, and I think Sonal and Maitri were also involved the year before. So it was fabulous. So yeah, so okay, it started off immediately. Yeah. This time we are very, very, very excited actually to bring this idea of streets for me. And me is not me is all of you people and all of us. So me is all of us. And which are, I would just like to say, when we talk about streets, we do not really look at them close enough. We are not even talking about, we don't even realize it. But if you think about it, they are one of the primary places which, kind of creates and reinforces this whole idea of meeting people and looking at each other. In fact, promoting compassion. So this whole interaction is the starting point for, knowing other people, starting point for empathy, and actually, in a way, like a higher sort of a thing. So I would just like to say sociologist Ryan Enos finds that it is the presence of a group of people that is proximate yet segregate, close but far, that precipitates the politics of division. So if you are talking about meeting, the closer we bring, there's where the divisions will reduce, and that's the place for streets. And this is a very interesting, very, very beautiful sketch. And why we brought this is because this is something that all of us have experienced, whether we are in a metropolitan, cosmopolitan, and any other place, or in a smaller town. Yeah, this is about us. This is India, and we are all about people, different types of people, but we are still the same. And we all occupy this street, and we relate to this. I mean, the more we are modernizing, but we still relate to this idea. So in a city, the street must be supreme. It is the first institution of the city. So I remember now we'll talk both in Hindi and English. So basically, basically हम सड़क या स्ट्रीट को ये देखेंगे कि इसको एक कमरा मान ले. इस कमरे में ये सोचो कि जो सारे लोग हम सड़क पे देखते हैं वो उनका कमरा है, और तुम्हारी छत जो है दैट इज द स्काई, ये हमारी जो
जो आसमान है वो हमारी छत है. So this is Louis Kahn, master architect. So if we Google, there's like a quick Google that we did, and if you look at it, so हमने कहा कि हमारी कंट्री की स्ट्रीट्स कैसी हैं, हमारी कंट्री की सिटी की स्ट्रीट्स कैसी है. नहीं, हम विलेज की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विलेज. सो अगर हम इसको देख रहे हैं तो व्हाट डू वी सी, एंड वी सी दिस, एंड इसको देख के क्या लगता है, वाह बहुत अच्छा. यू कैन सी सम फ्लाईओवर, ये दिख रहा है, सम बिल्डिंग, सम हाई बिल्डिंग, एंड यू आर थिंकिंग यही हमारा फ्यूचर है. बट अगर हम थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो इसमें लोग कहाँ हैं, मतलब लोग कहाँ हैं, और मे बी पेड़ कहाँ हैं, मे बी और क्या है या क्या नहीं है, ये इसके बारे में हम फिर इसके आगे भी बात करेंगे. वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर. ओके, so this is something that obviously we have we have talked about the fact that cities, and अभी क्या बन रहा है कि हमारे छोटे छोटे शहर थे, there are small cities, small towns, and everybody is making it, हम उसको एक उसको हम कहते हैं हमें मॉडर्नाइज करना है, हमें कंटेम्प्रेरी बनाना है, हमारे को we want it to be a place which has to be urban. एक urban word ना ये सारों के जहन में अब बैठना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बन, व्हाट वी सी एक्चुअली इज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि एक्चुअली हम जब अर्बन बना रहे हैं ना, तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है जिसका और कार्बन फुटप्रिंट, द फैक्ट दैट we are promoting climate change by the action that we are taking. That is something we really need to be careful. And urbanization is one of the major root causes of, if you look at it, cities occupy 3% of the earthland, but account for 2/3 of the world's energy demand and 70% of your CO2 emissions. मतलब कि आप इसको मान लो कि ये जो cities है, they are guzzlers and they are creating havoc to our planet. तो next slide देखें. तो ये थोड़े 2-3 चीजें हमें इसलिए सोचनी है because we are not in such a bad state, frankly speaking. And I think you can look at this. If you see this is a street, and I think this will, Maitri ma'am is going to elaborate on it. But this street, ये जो हमारा ये जो हम रोड देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे ये कैसी है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है. बट ये आपने सोचना है क्या ये अच्छा है या इज इट गुड, इज इट बैड? Here and Sonal, I would like you to come in also here. Talk if you want to ask a couple of questions, and yeah. तो ये एक मिनट, आप लोग पहचान पा रहे होंगे जितने लोग काशीपुर से हैं, ये रास्ता कहाँ का है? अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो कोशिश करो याद करने की. अगर लिटिल स्कॉलर्स वाले हो तो आप लोग स्कूल जाते होगे इस रोड से. तो सोनल, ओवर टू. नहीं, बोलो. यस मैम. क्या बोल रहे थे तुम? नहीं सुनाई दिया हमें. कोई कुछ बोल रहा था स्टूडेंट्स में से. मैम स्टेडियम रोड. हमें स्टेडियम रोड. मानपुर रोड के भी अंदर नहीं है, स्टेडियम रोड है. हाँ, हम आएंगे, हम इस पे और बात करेंगे बाद में. अभी सोनल मैम बताएंगी. अभी आपको ये रास्ते पे क्या क्या दिख रहा है? ये रास्ता किस चीजों से बना है, इसका आप कुछ बता सकते हैं फोटो देख के जो आपके सामने है? ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, ये हम लोग इसको कहते हैं, पर हमको क्या क्या अलग अलग चीजें नजर आ रही है. गाड़ी दिखा, चुंगी दिखी, और क्या दिखा मैम? शॉप्स और पेड़. हाँ मैम प्लांट्स ऑल्सो. वेंडर्स हैं. हाँ, बैनर्स हैं. यस. साइकिल, वेरी नाइस. फायर्स. आई थिंक टेंपल मैम. टेम्पल है, और वो एग्जैक्टली टेम्पल नहीं है. अ गेट, हाँ, किसी ने गेट गेट है. लिखा है.
हाँ जरूर। गेट है जरूर। और And we can see crowd. क्राउड, हाँ Crowd also, ma'am. Crowd and so many vehicles are there. ओके। और अगर जब Ma'am, अंधेरे में drains. जाते हैं, ड्रेन्स है, और ड्रेन के बगल में ब्लू ब्लू क्या दिख रहा है? Ma'am, like I think mountain. माउंटेन है ब्लू वाला? No, ma'am, not mountain. हाँ बताओ। Industries. Yes, इंडस्ट्री, construction site. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट। और अगर हम रात को जाते हैं तो हमें इस रोड पे किस चीज की जरूरत होती है, वो दिख रहा है? Lights. And light. हाँ, लाइट्स हैं। Ma'am, pole light. हम्म, Pole light. Yes. मैं एक चीज पूछ रही हूँ, लोग दिख रहे हैं? Yes. In the vehicle only, not on the road. हाँ, ये फोटो हमने सुबह सुबह ली थी ना, तो इसीलिए दिखता नहीं है, तो बस चेक कर। सो या तो ऐसे करते हैं, आगे बढ़े। Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये याद रखना क्या क्या दिख रहा है। तो we come to this and the thing is we are, so may I call everybody to join in here when we are with मतलब कि अगर हम ये पूछे कि आपको कुछ भी एक वही, can somebody share some stories about what does the street mean for them? So may I request Pankaj, Saurabh, Piyush, Ananya ma'am, if you are there, one by one. So we see a lot of things out here, a lot of activity here. बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग अपने अपने कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ अपना गेम भी खेल रहे हैं, एंड हो सकता है कुछ लोग उधर कहीं जा रहे हैं, एंड बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ लोग पार्क में भी हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने अपने बतख जो छोटा बच्चों का होता है वो पानी के अंदर भी डाल रखा है। तो और क्या क्या दिख रहा है? आपका एक्सपीरियंस क्या था पंकज सर, व्हेन यू वर, आपका स्ट्रीट के साथ क्या एक्सपीरियंस था जब आप छोटे थे? स्ट्रीट पे जब कोई हमारा जो एक्सपीरियंस जो रहा है कि भाई हाँ, एक व्यवस्था बनती है कि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमारा एक मिलने का भी एक जरिया बन जाता था कि कहीं पे हम हो सकता है हम साइकिल पे दोस्तों को मिल रहे हैं, या फिर हम इकट्ठे दौड़ के ले जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती थी जो हम सोचते थे कि भाई चलो मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, अपने कभी हो गया दूध का डोल लेके चले गए और वी गोइंग टू द वेंडर, वहां से दूध लेने जा रहे हैं, तो हमें भेज देता था शाम को, एंड वही चीज जो है उसी में हमारा ये हो जाता, साइकिल भी हो गई, और या फिर साइकिल नहीं हुई तो पैदल चल दिए, और साथ में उसके साथ दोस्त भी आ गए मेरे बीच में रास्ते में। तो ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि यहाँ से वहां जाना है, तो बहुत सारे लोगों को बीच में भी मिलने को हो जाता है। ये भी पता लगता था कि नई नई चीजें क्या आई हैं, सकता किसी की नई गाड़ी आई है तो वो नजर आ जाती थी, कोई नई बिल्डिंग आ गई बीच में, और हो सकता है कोई एक नई दुकान खुल गई है कि भाई यहाँ पे कुछ खाना है, और ये हमारा कोई एक पर्टिकुलर शॉप हो जाती थी जहाँ पे हमने कोई एक तो वो हमारा एक मीटिंग पॉइंट बन जाता था। तो बहुत कुछ जो एक ही सड़क पे बहुत सारी चीजें हो जाती थी। थैंक यू मे आई रिक्वेस्ट अनन्या मैम, आप कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर स्ट्रीट, योर एक्सपीरियंस? आप क्या सोचते? यस, As a child, I've like being in the town, I've always been fascinated to see. Matlab, road was a point of attraction. Just being in your area outside, seeing those vehicles, different cars, being on the NH, different cars. As a child, we used to get fascinated. बहुत अच्छा लगता था, मतलब different colors हैं और new models.
and on top of it, you know, gardens. That was a place where we really used to do bird watching when we were a child. We have captured images. बहुत सारी birds थी, seasonal birds हैं, transition phase में birds हैं. We've taken pictures of those birds, recorded there, you know, just saw how the behavior and everything. So as a child, uh, there are a lot of memories. Learning how to cross a road, how to cross a road in a safe way, using the pedestrian street. There are a number of things which, yes, we have as an experience, we will always cherish and remember that as a child, we have experienced these things on this street. Very nice. और कोई भी अपने बारे में कुछ कोई बताना चाहता है कि उनके साथ कोई ऐसी चीज जो शेयर करे, व्हाट हैपेंड कि स्ट्रीट पे उनके साथ कहीं गए हम, क्या हम जाते थे या अभी जाते हैं. Will somebody like to share? This is an open discussion at this point. I am not able to see who all are the participants. Yeah. Acha. Team Bell is saying during our childhood we were not so much familiar with personal vehicles. Can you can they be unmuted? They can just speak. Yes, ma'am. Sure. अच्छा, I think ठीक है, नहीं तो I'll just read it out. तो हम कह रहे थे कि during our childhood we are not so much familiar with personal vehicles. We normally use trains, bus, cycles and trees on both sides of the road. We celebrate even bringing of new cycle, while today nobody care how luxurious cars we are having during lockdown. I started growing plants, and to thank God, now my children too are enjoying it. Before lockdown, they are not aware of the nature around us. That is so true. मतलब अब एक साइकिल होती थी, वो ही हमारा एक प्राइज पोजेशन होता था, और ये हमें भी नोट करना है. तो अगर हम देखते हैं, हम जाते हैं, तो ये जो स्ट्रीट है, इट इज एक्चुअली समथिंग, हम जब आज बोल रहे हैं, it is, we need to share it. It is a common place, and when we share it, we need to share with human beings and with all the different. And हमारी streets वैसी हैं. Actually हम जब बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम naturally, हम बहुत ही we are very, अगर हमारे घर कोई आता है, we are very open people. We share everything that we do, and that's what our street is about. We need to share our resources. And हाँ, Vishaka saying कि festivals for girls, हाँ, festivals dress up होके आते थे, तो street में सब colorful लगते थे, और किसी के नई गाड़ी भी होती थी तो वो सड़क पे ही शो ऑफ करते थे. हाँ, तो यही है और यही होना चाहिए भी. नहीं क्या कि होना नहीं चाहिए कि हमें उधर जाने को मजा आना चाहिए. तो मैं आपको बताती हूँ, मैं छोटी थी तो मेरे को दूध लाना पड़ता था, और मैं साइकिल पे दूध का डब्बा लटका के जाती थी. और कभी कभी मेरे साथ मेरे कजिन्स भी आ जाते थे, मेरे भाई आ जाते थे, और हम जाते थे. और तब उतनी गाड़ियां नहीं होती थी, और मैं दिल्ली में ही रहती थी, और हम साइकिल पे जाते थे. तो 1-2 गाड़ियां होती थी, बट हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कहते थे, हम काफी छोटे थे, हम 10 साल के थे. देन वी वुड गो, और फिर हम लेके आते थे, दूध भी लाते थे, रास्ते में गोलगप्पे भी खाते थे मार्केट से, और फिर हम रुक के कोई नेबर मिल भी जाते थे, वो हमको थोड़ा बहुत पूछ भी लेते थे, डांट भी डलाते थे, और घर पहुंच जाते थे. हम घूमते फिरते काम भी कर लेते थे. तो ये इसमें तो बड़ा मजा आता था. मैं सोचती हूँ आजकल के बच्चों के, जो हम लोग गुड़गांव में रहती हूँ अब मैं, आजकल के बच्चे ना, मेरे बच्चे भी, आजकल हम बाहर नहीं जाते हैं, हमारे घर में आ जाता है दूध, तो वो रोड पे उतना मजा करेंगे कैसे. हाँ, टीम पीपल कह रहे स्ट्रीट्स आर लाइक कॉमन सेलिब्रेशन प्लेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ईद, दुर्गा पूजा, पंडाल, बिल्कुल है ना. और होली पे, अच्छा, वेरी वर्सटाइल प्लेस. आई टोटली एग्री कि हमारे लिए, और हमारे एज पीपल ऑफ द सिटी, पीपल ऑफ द मतलब सिटी हो, टाउन हो, कहीं भी शहर हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो आगे बढ़े. If anybody is not writing, आगे बढ़े. Yes. अच्छा. Oh, people are coming in with something. Let me just quickly read out. A street, although sounds to be a common term, but it is actually a place full of new experiences. We start discovering and observing the nature around us by passing through that place. It is a place of gathering. Absolutely. Absolutely. But aage, and I think it is also sort of lesson for us, teaches us several lessons daily when we cross. I think ये बहुत ही this is team Parijat has sent to me directly. Maybe everybody is not able to see, but yeah, I think very, very true. And I think, but ये हमारे को याद रखना है कि अब जो हो रहा है and what is going to happen आगे, and when we are talking about our streets, as we are wanting to become own cars, we want to have houses, and we want to build these so many shops, and we want to build these malls. कहीं पे ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, जो हमारा है, जो मेरा है, वो मेरा नहीं रह जाता है. ये इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू, और इसको सोचेंगे कि कैसे बनाएं हम फिर से. वो ही रास्ता मुझे मेरे लिए मीन्स हम सबके लिए. मैं इसलिए बोल रहे हैं हम streets for me is only because we are talking about our perspective. But in our perspective, we are not selfish. We will talk about our as a larger idea. Okay, we can go to the next, please. And we'll go a little quickly. We have now spent some time. So very quickly now we'll move fatafat to tell you क्या करना है आगे, क्या करना चाह रहे हैं. We are very excited, as you can see. And it's lovely to see कि everybody is also very, very excited. So ये तो हमने पहले ही हमने अपने से डिसाइड कर लिया है. बट जो the thing that I am telling everybody to be little cautious is that if you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and nature, what you are going to get is the people and nature on the street. So absolutely right. And this is something that हम अब जब अपने शहर को अच्छा बना रहे हैं, तो यही टाइम है हमें सोचना है कि हमें अपना शहर कैसा चाहिए. एंड इसके आगे थोड़ा ये सोचना है, when we are talking today and when we talk about driving through the car and we sit in a car and we are on the road, हमको क्या नजर आता है अपने सिटी के बारे में. एंड इफ अगर हम गाड़ी में बैठ के सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमको क्या नजर आता है और हम किस चीज से रिलेट करते हैं, ये सब हम सोच सकते हैं. और अगर हम चल रहे हैं उसी जगह पे, या हम 2 मिनट बैठ भी गए, या हम थोड़ा सा हम उस पे साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी स्पीड है ना थोड़ी कम है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे कि अब आफ्टर कोविड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू फिगर आउट कि भाई हमें कितने जल्दी कहाँ जाना है, भाई जल्दी किस बात की. ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, इसको अभी सोचे. हाँ, there are team Parijat is saying there's a lot of difference between the roads we walked and today our children are on. So why should that be? So let's get the children back on the roads. I am, like I have said, I am anyway researching on urban specialty for children, and बच्चे ही हमारा future है और हमें इसको देखना है. And all SDG goals, sustainability, idea of resource management is about securing our future. ठीक है, let's go ahead. Let's connect people, all type of people, young and old. जब हम बात कर रहे हैं for us, but also remember, and हमारा context क्या है, भाई हम तो ऐसे ही है, तो पेड़ पौधे, हाँ, cows, कुत्ते भी, हाँ, और चबूतरे पे भी बैठेंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे और भेलपूरी भी खाएंगे. ठीक है, और हम साइकिल भी चलाएंगे, गाड़ी भी चला लेंगे, भाई बस भी चलनी ही चाहिए और ठेला तो होना ही चाहिए. किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी सड़क है. ठीक है, आगे बढ़े. So we wanted to bring this point out, but I don't think हमें बोलने की जरूरत है कि बच्चे अकेले सड़क पे चलने चाहिए. ये हमारी जिम्मेदारी है. This is the responsibility of our cities, and the fact that
we should take the most vulnerable stakeholder, and I'm talking about stakeholder. जो stakeholder का हिंदी word I might not know, मेरे को मालूम नहीं है, but stakeholder होता है जिसका कोई हिस्सा हो उस चीज में, and हम सबका हिस्सा है, but I think बच्चे, बूढ़े और जो people थोड़े से special होते हैं ना, उनका हिस्सा ज्यादा है, थोड़ा हमको उनके बारे में ज्यादा सोचना है. तो vulnerable stakeholders we will think a bit more about, and we will not forget गांव माता. एंड ये हमारी रियलिटी है, और आजकल जब हम लोग सिटी बना रहे हैं हम भूल रहे हैं इनको. द फैक्ट इज ये काउज आर गोइंग टू बी ऑन आवर स्ट्रीट, हमें सोचना है इनके बारे में. सो द आइडिया इज दिस इज व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम एज प्लानर, और मैं अपनी बात करूंगी, आर्किटेक्ट हूँ, एक एस्थेटिशियन हूँ, आई एम अ प्लानर, एंड ऑल्सो मैं अथॉरिटीज के साथ काम करती हूँ, एंड हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी है. हम सोचते हैं हमने अपने शहर को और इंडिया को ऐसे बना देना, एक जगह पे रोड होगी, एक पे साइकिल चलेगी, लोग चलेंगे, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. बट द रियलिटी हमारे राइट पिक्चर में है कि हम इतने सारे हैं, हमारे पास लोग कम है, तो सारे लोगों को नजरअंदाज ना करे, हम कुछ नया करके दिखाएंगे. सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज. यस, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द स्ट्रीट, हम अपने हिसाब से सोचेंगे. ओके, लेट्स गो अहेड. सो क्विकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमने एक्सरसाइज, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द एक्सरसाइज. सो दिस is an exercise which are tagging the bigger idea of the SDG goals, sustainable development goals, but also how we are tagging it. We want that all of you people are part of the urban planning process, कि जैसा हमारा शहर बने उसमें आप बताइए कैसे होना चाहिए. And I think it is a right, so that कि I think children today, child right मतलब हम कहते हैं फ्यूचर में बच्चों ने ही इसको झेलना है, तो ये उनके राइट है that they will kind of bring that, and they can tell what do they expect from the city. But before you say only what the children are telling, and children I'm talking about you over here, 9 to 12-year-olds, which are not really children, they are adolescent, they are young adults. तो इस वाले एक्सरसाइज में, इस कंपटीशन में आप लोगों ने ये अपने अर्बन स्पेस को देखना है केयरफुली, पर इसके थोड़े हम इसको ऐसे ही देख के नहीं आएंगे, इसमें थोड़े स्टेप्स है. तो इसीलिए ये एक्सरसाइज को कुछ लेवल पे लाने के द फर्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू गेट द स्टोरीज ऑफ काशीपुर, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच वी होप टू फिनिश इन 4-5 days. वो 4-5 दिन में आपने ये स्टोरीज लेके आनी है. So this is the idea, collect the stories of different stakeholders of the city, and the student group is going to is acting on which is local shop owners, customers, commuters, passerbys, children. और इसमें हमने लिखा नहीं है, तो आपको अगर स्टोरी किसी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, साइकिल, एनिमेट एंड इनएनिमेट, you can go for anything. पहले this is about observing and relating. ये मतलब आपने देखना है और इसके बारे में आगे सोचना है. सो इसके बारे में सोनल मैम इज गोइंग टू एलाबोरेट. ये फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, और सेकंड पार्ट है ये इसके बारे में आप सोचोगे, बट आपने ये सोचना है फिर हमें इधर करना क्या है. तो करने के लिए हमारे पास, हमने इस आइडिया में हमने ये कहा है कि देयर आर 2 things that we are expecting. This is our expectations. क्योंकि इसको हमने एक वर्ड है, researcher has used the word artilized. Artilized दिख रहा है ना, AK-47 टाइप ऐसे लगता है. So basically हम क्या करना चाह रहे हैं ना, streets में we want the streets to have not be, अब हम, I know there is a lot of change, there is chaos, but let's make them beautiful, also make them ours. तो ये हम एक ये तरीका है that we are wanting it to be artilized, मतलब आप कुछ आर्ट को यूज करें, एंड इस आर्ट से आप आइडिया सोचे कि हम ऐसी क्या चीज कर सकते हैं इस स्ट्रीट में जो सिर्फ ही काम की बात ना हो, बट कुछ सुंदरता हो जाए, या कुछ स्ट्रीट प्ले हो सकता है, या कुछ हम इसमें कहना, कोई मैसेज भी देना है, हम मैसेज भी दे सकते हैं इससे. ठीक है, तो ये कुछ, दिस इज अ फन आइडिया. तो इसमें लिखा है पॉसिबल लोकेशंस है, बॉल्स है, पिलर्स है, सोचने वो है. इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, इस आइडिया को हम डेवलप करेंगे.
So this is the second. The third part is, so ये second और third part हम साथ साथ करेंगे, या एक part हम ज्यादा कर सकते हैं, किसी को कम करना चाहते हैं, that is yours. ये हमारे साथ अलग अलग टाइम पे हम interact करेंगे, that we will interact with you people, we'll figure this out. And the third part is pause, play, stay on the street. हम if हमने कुछ सोचा है, so we are looking at the scholars team, Pankaj sir, Ananya ma'am, the whole team, all the students. I don't know how we are going to make it possible. हम इसको विल ट्राई टेम्पररीली 2 अक्टूबर को उसको हम कर दिखाएंगे, लाइक डोरेमोन. आई नो यू पीपल आर मच ओल्डर, सब बड़े हो गए हैं, बट मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो डोरेमोन जब कुछ कर देता था फिर कहता था देखो हमने कर दिखाया. तो वी विल डू दिस, यू नो, वी विल ब्रिंग दिस आउट. हम इसको स्ट्रीट, हम इसको करके दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सोचा है कि यहाँ पे हम थोड़ा बड़ी जगह बिठाना चाहते हैं. यहाँ पे क्यों नहीं ठेले वालों को इकट्ठा करके खड़ा कर दे, यहाँ पे क्यों नहीं हम यहाँ पे साइकिल के लिए, साइकिल चलाने के लिए एक छोटा हम ऐसा पार्ट छोड़ दे स्ट्रीट के लिए कि यहाँ साइकिल चले, यहाँ पे गाड़ियां चले. तो इसको हम ऐसे करके कोई परमानेंट चीज से नहीं, हम में भी चौक ये वो ऐसी चीजों से, इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे. सो दिस इज द होल एक्सरसाइज. तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, ये काम हम सोनल मैम को बोलेंगे. सोनल come on board. Yes. So जैसे मैम ने आपको बताया, हम लोग सबसे पहले स्टोरीज ऑफ काशीपुर इकट्ठा करने वाले हैं, वो भी आपकी स्ट्रीट की स्टोरीज, आपके शहर के रास्तों की स्टोरीज. तो ये स्टोरीज हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे इनकी, और कैसे करेंगे ये स्टोरीज, कैसे हम सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या लेंगे हम ये स्टोरीज में, क्या होना चाहिए. सो ये सही है, यू विल स्टार्ट ऑन द स्ट्रीट. ऑब्वियसली तुम जाओगे वहां पे फिजिकली, तुम वहां घूमोगे, तुम देखोगे, तुम चलोगे वहां पे, तुम और तुम्हारे ग्रुप में, और तुम जाके देखोगे. क्या देखोगे आप, क्या क्या होता है स्ट्रीट पे. तो ये कुछ चीजें हैं, ये एक अर्बन डिजाइनर ने बताई थी कि स्ट्रीट में क्या क्या चीजें होती है. तो एक चीज ये है कि चलने का रास्ता, इंसानों के लिए, गाड़ियों के लिए, ये सब. तो रास्ता एक होता है. उसके अलावा क्या होता है, कुछ कुछ जगहें होती है जो हम, अगर वहां पे है, कोई फ्रेंड कॉल करता है, उनको मिलना है, उनको बोलने के लिए हम कोई एक जगह सिलेक्ट करते हैं. हम बोलते हैं कि हम ये चाट वाले के पास है, या फिर हम ये चौराहे के पास है. तो ये चीजें अपनी लैंडमार्क्स बन गई, क्योंकि ये सब लोगों को पता है कि ये जगह यहाँ की बहुत फेमस है और हम यहाँ पे मिल सकते हैं. तो जब आप रास्ते पे होते हो तो आपको किसी को बोलने के लिए कोई जगह चाहिए होती है कि हाँ ये है मेरा जगह. या आपके सर्कल्स में, हर किसी के अलग सर्कल्स में अलग चीजें ज्यादा पहचान में होगी. कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक बैंक है, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल है, कुछ लोग खाने के बारे में ये बात करेंगे. तो ये चीजें चेंज होते रहती है, पर ये चीज है लैंडमार्क्स. तो आप अपने सड़क पे ये देखोगे, चलने की जगह कहाँ है, कितनी है, किस किस चीज के लिए चलने की जगह है, कहाँ कहाँ रुकने की जगह है. और रुकने की जगह में एक और आता है कि कहाँ से आप बहुत सारे दिशाओं में जा सकते हो. जैसे अपना चौराहा हो गया, वो कॉर्नर पे अगर किसी को मिलना है, किसी को बोलना कि तुम कहाँ हो, वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि चौराहा पे हो, पर कौन से साइड पे हो आप, उसके लिए भी आपको कुछ बोलना पड़ता है. तो वो जो है, जहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स आप जा सकते हो आगे पीछे, उसको हम मार्क करेंगे. वहां पे क्या हो रहा है, वहां का कैसे फंक्शनिंग थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे. और हर स्ट्रीट के यहाँ एज पे कुछ तो डिफाइन करता है स्ट्रीट को. चलने की जगह होती है और वो खत्म होके कुछ और भी होता है, क्योंकि वहां पे आपके शॉप्स होंगे, वहां पे आपकी बैठने की जगह होगी, या ऐसे कुछ होगा. तो आपका जो एज है वो कैसा है, और वो एज की वजह से इंसान किस तरह से यूज करता है वो जगह, वो भी आप देखोगे. जैसे अगर कोई स्ट्रीट शॉप है और बाहर उनका ठेला एक्सटेंडेड है, तो वहां पे इंसान अलग तरीके से बैठेंगे, खड़े रहेंगे, या उसके सामने बाइक्स किस तरह से पार्क होगी. तो ये एजेस की जो आपकी कैरेक्टर है आपकी स्ट्रीट के पैचेस में, जब आप ऑब्जर्व करोगे, ये एक चीज पे आप ध्यान रखोगे. और उसके अलावा एक और आखिरी चीज जो वहां पे होती है, ये डिस्ट्रिक्ट मतलब एक सिमिलर टाइप की चीजें जो एक साथ हो रही है. जैसे कभी कभी लंबी सड़क होती है, तो ऐसे होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सिर्फ कपड़ों की दुकान दिख जाएगी, या कुछ जगहों पे आपको
सिर्फ खाने की दुकानें रहेगी। तो ये स्ट्रीट में अलग अलग चीजें होते रहती है। तो आपकी स्ट्रीट में ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे बदलाव आ रहा है, एक ही टाइप का कुछ है या टोटली अलग अलग है? तो ये भी एक चीज, ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हो अपने स्ट्रीट पे, जो थोड़ा नोटिस कर सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या है मेरे स्ट्रीट पे। हाँ, और ये सब के बाद भी और कुछ होता है, इसमें कुछ तो मिसिंग है, जो हमारी बात हो चुकी है इसके पहले। ये सब होता तो कोई भी स्ट्रीट हो सकता था, ये तो हर कोई स्ट्रीट पे होता है। तो ये सड़क अपनी बनती है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के बाकी जानवर, यहाँ पे पौधे, जो भी वहाँ के अलग अलग एक्टिविटीज है, कहीं लोग बातें कर रहे हैं, कहीं कोई बैठा है अपने डॉगी को वॉक पे लेके आया, कोई ठेला वाला है, ये सारी चीजें ही आपकी स्ट्रीट को डिफाइन करती है। नहीं तो वो बस बिल्डिंग, सड़क और गाड़ियां होती, और फिर इंसान के लिए क्या होता वहां पे। तो आप इसमें काफी इम्पोर्टेंट हो, और सब लोग जो भी है ये सड़क पे, वो हर कोई इम्पोर्टेंट है, जैसे पहले बोल चुके हैं मैम भी। एंड जब ये सारी चीजें है, ये सब चीजों को तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम चल रहे हो वहां, या तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये चीजें क्या क्या होती है, क्या चीजें देख सकते हो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस किस किस चीजों से बन सकते हैं, या अलग अलग। लाइक सबसे पहली एक्सरसाइज में आप लोग जाओगे, आप वहां फिजिकली घूमोगे, और आप देखने की कोशिश करोगे कि मेरा ये स्ट्रीट का एक्सपीरियंस क्या है। और ये कुछ गाइडलाइंस है जो आप यूज कर सकते हो देखने के लिए, समझने के लिए, कि या थोड़ा ज्यादा ध्यान से। सबसे पहले अपना ध्यान जाता है देखने में और सुनने में, क्योंकि ये दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है। कहीं कहीं कुछ स्मेल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कहीं कुछ टेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट। लाइक कहीं कोई अगर चाट की दुकान है या कॉफी की दुकान है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ जाती है कि आपको मुंह में भी पानी आ जाता है कि हाँ, इसका तो टेस्ट ऐसा है, ये मुझे पता है और मुझे यहाँ जाना ही है। या फिर जब आप चल रहे होते हो रास्ते पे और आपको एक पेड़ दिख जाता है, और आपको याद आता है कि ये पेड़ मैंने कहीं और देखा था और वहां पे कोई और बर्ड था। तो मेमोरीज और फीलिंग्स, आपको कुछ याद आता है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या कोई गाड़ी सडनली आ जाती है जब आप चल रहे हो और आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये क्या हो गया, या किसी ने एकदम जोर से हॉर्न मार दिया, किसी ने पानी उड़ा दिया आपके ऊपर चलते हो। तो ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट कर रही है, आपके दिमाग में क्या रहता है वो जगह पे। और जब आप ये चीजें देख रहे हो, आपकी पुराने एक्सपीरियंसेस या बाकी लोगों को देख के, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो वो किस नजरिए से देखेगा और आप किस नजरिए से देखोगे, इसमें फर्क होगा। क्योंकि एक तो उनकी आंखें जो देख पा रही है, उनके हाइट की वजह से वो अलग होगा। दूसरा, उनको जो मजा आ रहा है, उनको कुछ आवाजें, कुछ कलर्स बहुत ज्यादा मजा आएगा, बड़े लोगों को शायद वो डिस्टर्बिंग लगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और टाइम के हिसाब से भी, जैसे सुबह सड़क, मैत्री मैम ने बोला स्टार्टिंग में कि ये फोटो सुबह की है इसलिए लोग ज्यादा नहीं दिख रहे, तो ऐसा कुछ हो रहा है सड़क पे, जो सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, और शाम को कुछ हो रहा है। अगर अलग अलग टाइम पे आप जाके देख सके स्ट्रीट को, अलग अलग लोग भी ग्रुप पे जा सकते हैं, पर जाके देखे कि क्या हो रहा है, कैसे ये स्ट्रीट बदल रही है, कोई ठेला वाला नया आ रहा है, या सुबह कुछ बंद हो रहा है, सुबह वहां पे फूल वाला है और शाम को वहां पे कुछ खाना बनाने वाला है, या क्या हो रहा है, ये क्या चीजें बदल रही है। और उसके अलावा वहां पे कोई पक्षी आ रहे हैं, कोई जैसे हमने गाय देखी और डॉगी देखा वगैरह, ऐसे कुछ है क्या वहां पे। और आवाजें भी, जैसे आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, अलग अलग जगहों पे कहीं ज्यादा आवाज होगा, कहीं कम होगा। और लाइट भी, अगर बिल्डिंग है कहीं, थोड़ी एक जगह आपकी स्ट्रीट थोड़ी ज्यादा छांव में रहेगी, पेड़ होगा, कहीं आपके यहाँ बहुत जोर से सनलाइट आएगी और आपकी आंखें दर्द करेगी वो सनलाइट की वजह से। तो जब आप चल रहे हो ये स्ट्रीट पे, आपने अपने आप को पूरी तरह से वहां पे रख के एक्सपीरियंस करना है, क्या हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या समझ रहा है, और क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे जो मैं समझ सकती हूँ। और आपने अगर, जो लोग ये स्ट्रीट पे नए हैं, उनके लिए शायद काम ज्यादा आसान हो जाएगा, पर जो लोग वहां पे हमेशा जाते रहते हैं,
उनके लिए काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी आदत होगी किसी तरह से वहां पे घूमने की। तो आपने थोड़ा सा स्लो करके देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नया है जो मैंने पहले देखा नहीं है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ऐसा कुछ है। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। जैसे आप चल रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे बाकी लोग हैं, 10-15 लोग तो रहेंगे ही आपके आजू बाजू, और वो लोग भी ये स्ट्रीट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बराबर। तो अभी आपकी एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली है। हम ये सोचेंगे या हम ये ध्यान देंगे कि ये कौन लोग हैं, कौन कौन है आजू बाजू, किस तरह के लोग हैं जो ये स्ट्रीट कर रहे हैं, और वो किस तरह से वो स्ट्रीट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या वो वहां पे क्या कर रहे हैं। आप अगर वहां पे आप ही जा रहे हो, पर अलग अलग टाइम पे जब आप जा रहे हो, अगर आप वहां पे सिर्फ इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हो या किसी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा वो स्ट्रीट का। और आप ही जब नेक्स्ट टाइम जाओगे कुछ चीज खरीदने, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, क्योंकि आपका मूवमेंट पैटर्न ही अलग होगा। तो हर इंसान जो आपके साथ होगा स्ट्रीट पे, उनके ऑब्जर्वेशन पे से भी आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या करने जाते हैं लोग उधर, और कौन कौन है उधर, और वो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तुम एक चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर तुम्हारे साथ बाकी लोग भी हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड जब तुम ये सब चीजें जाओगे देखोगे, तो आपको काफी सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलेगा। आपके पास एक कलेक्शन होगा कि आपके ग्रुप में ही आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके अलग अलग टाइम पे एक्सपीरियंसेस होंगे कि ये हुआ। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे और पता चलेगा कि मेरा तो ये एक्सपीरियंस था, पर तुम्हारा ये एक्सपीरियंस था, मैंने ये देखा जब मैं था वहां पे या मैं थी वहां पे, ये एक चीज मेरे ध्यान में आई और इसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा, तो मैं इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑब्जर्व करना है हमें, दूसरों का भी और खुद का भी। हम कोई भी एक एस्पेक्ट पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है, जब आप जा रहे हो जो भी है, तो वो देखेंगे हम, और ये सब कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। एंड ये सब होने के बाद आप लोग बातचीत करके एज अ ग्रुप ये डिसाइड करोगे कि इतनी सारी एक्सपीरियंसेस है, इतनी सारी स्टोरीज है, और इसमें से आपको एक स्टोरी कुछ तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये एक्सपीरियंस, ये स्टोरी, ये चीज के बारे में हमें बात करना है, हमें इसके बारे में शेयर करना है। एंड ये स्टोरीज किसी की भी हो सकती है, वो इंसानों की हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, एक ग्रुप की हो सकती है। जैसे बच्चे हो गए वो एक टाइप ऑफ ग्रुप हुआ, जैसे वुमेन हो गए वो एक टाइप का ग्रुप हुआ, फैमिलीज भी एक टाइप का ग्रुप हुआ, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो, जब तुम फैमिली के साथ चलते हो, ये अलग होता है, जब सिर्फ बच्चे चलते हैं वो अलग होता है। तो ये स्टोरीज आप किसी भी तरीके के हो सकते हैं, आइदर खुद के, आइदर कोई भी ग्रुप के, या को बींग्स का मतलब ये है किसी पेड़ का हो सकता है ये स्टोरी, किसी बर्ड का हो सकता है। अगर आपको एक एकदम पुराना पेड़ मिल गया वहां पे, और आपको देख के वहां पे या लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करके ये पता चला कि वहां पे क्या था पहले, और आपको ये बताना है कि ये पेड़ क्या कह रहा है, उसको क्या लग रहा है, जिस तरह से इंसान आजू बाजू घूम रहे हैं वो पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप बेंच ले सकते हो, आप स्ट्रीट पोल ले सकते हो, आप कुछ भी चीज ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एकदम रियल होना चाहिए, वो इंसान ही होना चाहिए जिसकी आप स्टोरी बोलना चाहो। या आप पूरी सड़क की भी स्टोरी बोल सकते हो, कि जैसे कि सड़क ही बात कर रही है और बता रही है कि हमारे यहाँ ऐसा था और अभी ऐसा है, या ये चीजें हो रही है मेरे साथ। तो ऐसे स्टोरीज के लिए ये बस थोड़े एग्जाम्पल्स है, आप और कुछ भी कर सकते हो, पर ये आइडियाज देने के लिए है आपको कि स्टोरी ऐसे नहीं है कि हमें हमारी ही चाहिए, पर जो भी हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, उससे हम कुछ कलेक्ट करेंगे। सो अभी स्टोरीज जो होती है ये बोलने की तरह होती है कहीं कहीं, और कुछ कुछ स्टोरीज हमें ज्यादा दिन याद रहती है, कुछ कुछ स्टोरीज अगर आपको बुक्स में भी अभी तक जो भी आया है, या कुछ कार्टून जो आपने देखे, कुछ मूवीज जो देखे हैं, वो किस तरह से बताई जाती हैं, उस हिसाब से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचती है। तो हम अगले कुछ स्लाइड्स में ये देखेंगे कि किस किस तरह से, किसके बारे में स्टोरी होगी वो हमने देखा। अभी वो स्टोरीज किस तरीके से
हम बताएंगे बाकी लोगों के साथ किस तरह से शेयर करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे भी आपको गाइड करेंगे, पर अभी आपको बस एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे ऑफ स्टोरीज जो बाकी लोगों ने बनाई हैं अलग अलग जगह की, ताकि आपको आइडिया आए। और ऊपर के स्लाइड में जो मैंने ये रिवर्स क्रोनोलॉजी, फॉरवर्ड क्रोनोलॉजी, ये सारी चीजें लिखी है, एक्टिव, पैसिव, कंपैरेटिव, ये क्या होता है, ये स्टोरीज के जरिए से आपको बताते हैं कि आप किस तरह से आपकी स्टोरी बता सकते हैं। सो ये एक स्टोरी है जो मैजिशियन की है। इसमें आप फोटोज देखो, और ये जिस तरह से फोटोज लिए गए हैं, इसमें सबसे पहले आपने देखा कि स्टेज का सीन है, उसके बाद कर्टन के पीछे का सीन है, फिर कर्टन खुलता है, और फिर आपको धीरे धीरे पीछे की चीजें पता चलती है। तो इसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो हम आइदर ऐसे देखते हैं कि कोई स्टोरी में हम स्टार्ट करेंगे अभी ऐसा है, फिर पीछे ऐसा हुआ करता था, तो इसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजी बोलेंगे। और ये एक एग्जाम्पल उसका है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और अब ये है। तो हम किस तरह से अपना स्टोरी पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। एक बार डिसाइड करेंगे हमें क्या स्टोरी शेयर करनी है, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं उस हिसाब से हम बाकी लोगों को क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, इस हिसाब से हम ये चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और स्टोरी है जिसको हम इलस्ट्रेटेड स्टोरी कहेंगे। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये कांता पेन करके एक ग्रुप की स्टोरी है, जिसमें वुमेन मिलके ओवर टाइम एक ग्रुप बनाते हैं, और जो उनको सेफ्टी इश्यूज वगैरह लगते हैं, कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज लगते हैं, उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं। और इसके अगर आपने इमेजेस देखे तो आपको ये रियलाइज होगा कि बैकग्राउंड वगैरह उन्होंने इतना फोकस नहीं दिया है, इसमें उन्होंने कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस दिया है। जैसे अगर आपको किसी एक कैरेक्टर की स्टोरी बोलनी है या लोगों की कोई एलिमेंट भी आपका फोकस हो सकता है, कभी आपका बैकग्राउंड ज्यादा फोकस हो सकता है, कभी आपका फोरग्राउंड, जो आपको फोकस करना है वो आप ज्यादा दिखाओगे। इसमें ये औरतें हैं और वो किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट करती है, जहां से वो स्टार्ट करती है, पहले वो सोचती है और फिर वो जाती है, बाकी लोगों को कॉल करती है, और फिर सब मिलके सोचते हैं कि कुछ कर सकते हैं हम अगर एक साथ आए, और फिर इवेंचुअली जाके कुछ ना कुछ वो लोग चालू करते हैं काम गांव में, और फिर थोड़े टाइम बाद वो पूरा बनाते हैं। तो ये एक पूरी स्टोरी है, और इसमें ये वुमेन का ग्रुप ही प्रोमिनेंट है हर इमेज में। और ये अभी थोड़े स्ट्रीट स्केचेस है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जो ज्यादा एक्टिव है, और कुछ चीजें हैं जो थोड़ा कम एक्टिव है। लाइक लोग, दोनों फोटोज में आप देखोगे मेनली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, एक एक चीज है जो उन्होंने हल्की सी कलर किए हैं, क्योंकि जो भी इंसान ने बनाया है उनको वो हाईलाइट करना है कि यहाँ पे फर्स्ट इमेज में कि वो गाड़ी है जो मुझे दिखाना है। अगर आप वो फोटो देखोगे ध्यान से, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा वो कार पे, फिर आप नोटिस करोगे कि हाँ बाकी लोग बेंच पे बैठे हैं, एक डॉगी भी है वहां पे, एक दो बेंच खाली है, स्ट्रीट लैम्प्स है, बाकी चीजें हैं, ट्रीज है, वो सब है, बट आपका अटेंशन जाता है कहीं चीज पे। तो आप ये डिसाइड करोगे कि आप इस तरह से बात कर रहे हो कि कुछ चीजें चल रही है और कुछ चीजें मोशन में है, और आपको वो हाईलाइट करना है, या आपको कुछ चीजें ये दिखानी है ज्यादा कि सब कुछ एकदम शांत है, और जो शांत है उस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हो। जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे बेंच हो गया, ये चीजें एकदम ऐसे शांत चीजें हैं वहां पे, वो एक ही जगह से एक्सपीरियंस कर रही है। और जैसे चलने वाले लोग अलग स्पीड से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साइकिल वाले लोग अलग स्पीड से सेम जगह एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गाड़ी वाले लोग अलग तरीके से। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो नरेटिव टाइप और किस तरह से आप दिखाते हो, ये दोनों का रेफरेंस है ये एक और एग्जाम्पल है जो आप कंपैरेटिव में या ये एक और एग्जाम्पल है जो पेंटिंग का है, जिस तरह से स्ट्रीट है कि कलर एक एलिमेंट है इसमें जो काफी प्रोमिनेंट है, इसीलिए उन्होंने
ये मीडियम यूज किया है जो पेंटिंग का है, और वो एक स्टोरी बता रहा है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वेंडर्स है, लोग है बेचने वाले और ग्रुप है, तो कुछ फेस्टिवल का माहौल है, ये पेंटिंग एकदम डायरेक्टली बता रही है। तो आपकी स्टोरीज जब आप बताना चाहते हो तो आपको ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, किस तरह से आप स्टोरी बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी कर सकते हो। और एक और चीज जो एक्चुअली पहले स्लाइड में मैंने बोलनी चाहिए थी, वो ये है कि दो स्ट्रीट्स का फोटो जो आपने देखा, उसमें दोनों अलग है, दोनों सड़कें हैं, अलग जगह की है, और आप कंपैरिजन भी कर सकते हो आपकी स्टोरी में, जैसे सुबह क्या था, शाम को क्या था। और ऐसा नहीं है कि स्टोरी एक ही चीज में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। कभी ऐसे भी तुम देख सकते हो कि तुमने 5 चीजें ऑब्जर्व की जो ऐसे पहली बार कोई देखे तो लगे कि बहुत ही रैंडम है, बट सभी चीजों में कुछ तो एक कनेक्शन है। कि ये जैसे पहले तुमने एक गाड़ी दिखा दी, मे बी एक मशीन दिखा दिया, मे बी कुछ बर्ड्स दिखा दिए, और ये तीनों को जोड़ने वाली एक चीज जो हो सकती है वो साउंड हो गया। तो आपकी स्टोरीज कुछ भी हो सकती है, और जो भी आप ऑब्जर्व करो, इसके लिए हम क्रिएटिव तरीके ढूंढेंगे इनको जोड़ने के लिए। और एक और चीज जो हो सकती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि आप वो स्ट्रीट पे जाके कुछ बनाओ, आपका जो व्यू है वो बताओ वहां पे। और इस स्लाइड के लिए मैं अरुणा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐड करे कुछ चीजें कि किस तरह से स्ट्रीट आर्ट। और सो ऐसे है कि अभी ये नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो दिस इज जस्ट अ स्लाइड व्हिच इज सेइंग कि हम अपनी पहले स्टोरीज इकट्ठी कर लें, लेट्स डॉक्यूमेंट इट, लेट्स आइडेंटिफाई हमारा नैरेटिव क्या होगा। कि हम अपनी स्टोरीज तो लाखों होंगी, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने जाना है उस सड़क पे, रास्ते पे, आपने उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और आपने ये देखना है कि मुझे हमें कितनों की स्टोरी मिल रही है, और इसमें से आप कौन सी स्टोरी देना चाहते हैं। और ये जो पार्ट है, स्ट्रीट आर्ट का पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। तो ये जो पहला पार्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन का, हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया कि आप इसको फटाफट करके देखें। फिर हम कोई स्टोरी से अगर आपको कुछ कहना है तो हम स्ट्रीट आर्ट पे लेके आएंगे, और हम उसको विल ट्राई कि हम उसको वहीं पे एक्चुअली रियल टाइम में बनाने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरैक्शन। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ, वी कैन गो फास्ट ऑन दिस नाउ। सो अभी तक हमने जो बात की उसमें ये है, स्टोरीज है, ये एक्सपीरियंसेस है अपनी, एंड ये एक्सपीरियंसेस जो है जब हम शेयर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा लोगों को पता चलेगा, आपकी आवाज आएगी लोगों तक। एंड एक ही सड़क है जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देगी, और जब हम ये एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ये स्टोरी अगर किसी और की भी है, सिर्फ आपकी स्टोरी है तो वो कम लोगों तक शायद पहुंचेगी, बट जब वो 10 लोगों को लगे कि हाँ ये जो बोल रही है वो मेरे साथ भी हुआ है, ये मैं भी कर चुकी हूँ, या ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा याद रहती है, वो ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तो हम ये इंटेंशन से जाएंगे सड़क पे और स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट, आई थिंक वी कंक्लूड हियर। हाँ, नो, आई थिंक दिस वाज द थिंग लास्ट वाला। तो Yes. just we'll close Jacobs, so we go back to some streets more often. हमने ये सब बात कर ली है कि हम एक सड़क पे ज्यादा जाते हैं, कोई सड़क में हम ज्यादा पसंद करते हैं, कोई सड़क में हम नहीं जाते हैं। तो हमने देखना है कि हमने अपनी सड़क, ये जो हमारे रास्ते हैं, इसको ऐसा बनाना है कि हम उधर बार बार जाए। वी मेक इट अ प्लेस मेकिंग एक्सरसाइज, हम बोलते हैं आर्किटेक्चर में। तो दैट इज इट, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर एंड, and over to Ananya ma'am to identify who's going next. Maitri ma'am, so please, that's it from our side. Thank you. And आगे के लिए we are very very excited कि हमारा जब next interaction होगा तो we will see बाकी लोगों ने क्या किया है। वैसे Maitri ma'am is ready. Maitri ma'am, would you want to just show the, हम कौन सी सड़क के बारे में बात कर रहे हैं? So I was just waiting for Ananya. Should I go ahead? Yes, ma'am. मैं करूँ? Hello. Ma'am, can we just show the last year's presentations?
I think that very will help quickly, the students to. ठीक Yeah, है, yeah. तो Very ये मैं quickly, हाँ we can have the last year's one. हाँ तो Just ये 1 जो minute. अभी अनन्या मैम दिखा रहे हैं ना, ये पिछले साल जो हमने करा था सेतु में, जो बच्चों ने किया था पानी के ऊपर लेके, और हर लोगों की याद क्या है पानी से जुड़े हुए, तो उसके बारे में है। तो हम बहुत जल्दी से देख लेंगे कि उन्होंने क्या किया है, ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए। और आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो या प्रश्न हो या सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स पे डालते रहिए, हम लोग एक साथ फिर बाद में ले लेंगे। एंड भूख लगी होगी पर थोड़ी सी देर बस ये वाला प्रेजेंटेशन देख लेंगे, हमारा तो थोड़ा सा है, फिर हम बाद में भी मिलेंगे। तो Now I would like to request Team Drona Sagar to present their work. So good afternoon, everyone. I'm Avantika along with my teammate Soumya from Team Drunasagar Little Scholars. Me and my team has made a small video as our presentation covering the journey of Drunasagar from our grandparents' time to the present time. So before we start with the video, I would like to give you guys just a brief explanation of our content. So we visited the site and its conditions at present, the infrastructure that it has and its significance in the views of the local residents of Kashipur. We also interviewed few people to know what activities happened there on daily basis, as well as what used to happen earlier and what was its significance in the older times. I once sat with my granny and chatted about the lake. The lake appeared teardrop silver in color, and it was shaped like a perfectly flat disc of metal. No sound rang out from the shimmering emptiness of space around. The only sounds what one could hear was the bumbling of bees, she said. I was completely mesmerized by her speech, and I wished to see the lake in the same condition. So that was all. Now we'll start with our presentation. Hope you'll enjoy it.
तो कैसा लगा आप लोगों को भी? थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, बट अभी हम पहले देखते हैं कि हमें कहाँ पे करना है, क्या करना है। बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा। अनन्या, you'll अपलोड, और आप लोगों को कोई भी किसी को अभी जब हम फोटोज दिखाएंगे तो कुछ भी बोलना हो या कुछ याद आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सो जब तक पीपीटी अपलोड हो रहा है, कैसा लग रहा है अब तक आपको? जो भी सुना, जो भी बताया हमने एक्सरसाइज के बारे में, या तो उसके बारे में कोई इनिशियल कमेंट, थॉट्स? प्रश्न हम बाद में लेंगे। हाँ, I hope they are excited about it. एक्साइटमेंट है? मैम पूछ रही हैं, हमें दिख नहीं रहा है एक्साइटमेंट। Yes, chat box में लिख दीजिए. You can write anything. It'll give us also, so we'll also know. Yes, we are working with. Acha, Team Okay. Samuel is also saying. People is also yes. ओके तो हम चलते हैं। तो जो हमारी जो ये सड़क है, हमारे पास बहुत सारी सड़क है, पर सिंस हम टारगेट कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को करें, तो और सब यहाँ पे काशीपुर के बाकी सारे लोगों को भी पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे बच्चे कुछ कर रहे हैं, अपने अपने स्कूल्स की तरफ से भी स्कूल का नाम हो, तो हमने एक सड़क यमार्क कर ली है। ये सड़क शुरू होती है स्टेडियम से, स्टेडियम के सामने से, और ये जाएगी, हम लोग छतरी चौराहे की तरफ जाएंगे। सब काशीपुर से ही है ना? छतरी चौराहा माने जो मेन चौराहा, हम चीमा की तरफ से होके छतरी चौराहे तक हम जाएंगे। और हर स्कूल को एक जगह मिलेगी, हर टीम को, हर स्कूल को नहीं, हर टीम को एक जगह मिलेगी जहाँ पे वो उस सड़क की स्टडी करेंगे। तो हम जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का एक रास्ता है। इस सड़क के बारे में हम जानेंगे और इस सड़क में हम क्या कर सकते हैं, इस सड़क को हम चाइल्ड फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, पीपल फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, उसका हमें एक आइडिया मिलेगा। तो ये शुरू होता है स्टेडियम से लेके छतरी चौराहे तक, और हर टीम को अलग अलग मिलेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा डीप में देखना चाहेंगे या पास से देखना चाहेंगे तो हाँ, तो ये गूगल मैप से है। तो 1.8 किलोमीटर जो गाड़ी से जाए तो 5 मिनट लगेगा लगभग। तो और आप देख सकते हो जो मेन लैंडमार्क्स हैं, स्टेडियम है, चामुंडा हॉस्पिटल है, बैंक है, नर्सिंग होम है, और फिर चीमा चौरा और फिर छतरी चौरा है। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम उसके टेरेन के हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ पे ग्रीन स्पेसेस है, कहाँ पे नहीं है। और ये जो तीसरा है, ये हमने आउटलाइन मैप बनाया है जहाँ पे जो की लैंडमार्क्स है हमारे साथ, उसको देख के उसके हिसाब से। तो अगर हम स्टेडियम की तरफ से आए तो हमें क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से साइट्स हैं या कौन कौन सी जगह हैं वो। तो पहला पंकज सर, whenever you want to come in. Carry on, ma'am. Carry on. हाँ, so whenever you want to come in, पंकज सर। So जो हम शुरू करेंगे, पहचान में आ रहा है, ये हमारी पहली स्लाइड में भी था। तो जो ये स्टेडियम के सामने की तरफ से है, और स्टेडियम के सामने अगर कोई जा रहा होगा तो हमें वो ब्लू एक टिन शेड दिखेगा, उसके पीछे शायद कुछ बन रहा है, हमें पता नहीं है क्या बन रहा है, तो वो भी एक कहानी है। और अगर ये ओपन ड्रेन देखो या बिल्डिंग्स देखो या गाड़ियां खड़ी हैं, तो जब आपको जो भी लोकेशन मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सोनल मैम ने बताया था लैंडमार्क्स क्या है, जो फिजिकल आर्टिफैक्ट्स क्या है वो क्या है, और फिर उससे आजू बाजू इंसान की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कब जा रहा है आ रहा है उससे। तो ये शुरू होता है ये स्टेडियम से। फिर इसके आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम जाते हैं तो क्या क्या आता है, काशीपुर वाले स्टेडियम से हम चीमा की तरफ जाएंगे तो ये जो चौरा, पहला वाला चौरा जो एक मानपुर रोड की तरफ, और वो गेट जो गुरुद्वारा का गेट है, और यहाँ पे एक चुंगी भी है, और कॉर्नर में सब्जी वाले बहुत रहते हैं, फ्रूट्स के रहते हैं, और आसपास एक नया बड़ा कुंदन का शॉप भी खुला है, अभी हाल ही में पिछले साल ही खुला है। तो ये वो वाली जगह है। तो एक लोकेशन, एक स्कूल को, एक टीम को ये वाली जगह दी जाएगी। अभी आपको एग्जैक्टली कौन सी जगह है, कौन सा पढ़ना है, वो
बता दिया जाएगा। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या आता है, ये स्टोर्स की लाइन है। जनता स्टोर है, एलन कूपर का है, और सीधी सीधी तो आप अगर देखते जाओ जो काशीपुर में रहते हैं इस सड़क पे, कि सड़क खुद भी कैसी चेंज हो रही है। जब हम वो कहते हैं ना कि स्टोरी ऑफ द स्ट्रीट, तो सड़क भी कैसे चेंज हो रही है। रामनगर की तरफ जा रहे हैं तो खुली होती जा रही है, चौड़ा होता जा रहा है। काशीपुर की तरफ आ रहे हैं तो वो पतली होती जा रही है। अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, आगे आगे देखते हैं क्या है। तो ये जनता स्टोर है। फिर ये थोड़ी सी खुली जगह है, ये जहाँ पे एक साइड पे आपने देखा होगा मार्बल्स की बहुत सारी दुकानें हैं, और उसके एकदम उल्टे तरफ अगर हम सिर्फ यहाँ से देखें तो हमें दोनों तरफ के एकदम अलग अलग लगेगा कि ये तो काशीपुर का है ही नहीं। अभी ये सुबह सुबह की फोटो है तो इसीलिए और भी खाली लग रहा है। दोपहर के टाइम यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वाले भी खड़े हो जाते हैं उस तरह से। तो ये मार्बल्स, तो जो मार्बल्स बेचते हैं उनकी भी एक कहानी होगी। जो मार्बल्स लाते ले जाते हैं जो गाड़ी में, ट्रक में, रिक्शे में, उनकी भी एक कहानी होगी। तो उसके आगे 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 आता है ये डोमिनोज के उल्टे तरफ से। हम आगे अंदर की तरफ देख रहे हैं पर सड़क भी है इधर, और इसके बगल में आगे जाएंगे तो हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की भी बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। वहाँ पे भीड़ होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पेशेंट्स हैं, जो डिफरेंट मेडिसिन की शॉप्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं, कैसे नहीं बैठते हैं, उनको सड़क कैसी चाहिए, उनको तकलीफ होती है क्या, एम्बुलेंस आता है तो कैसे आता है, एम्बुलेंस इजीली घुस जाता है या नहीं घुसता है, उस तरह से। और यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम सीधे अब चीमा की तरफ जाएंगे। और ये जो चीमा से थोड़ा सा आगे जहाँ पे आपका एक बचत स्टोर है, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो हमारा कटोरा ताल भी आता है एंड हीरो होंडा का शोरूम भी आता है। उधर दूर आपको रेड टेप की शॉप दिख रही है। आगे जाएंगे तो एक नर्सिंग होम है। तो ये भी एक लोकेशन है। और फिर आ जाता है हमारा पहला चीमा चौरा। एंड चीमा चौरा में बदलाव आया है। पिछले उसमें पहले ये रास्ता बंद होता था, अब खुल गया है। पर क्या उससे ट्रैफिक बढ़ी है, कम हुई है? तो चीमा चौरा का ये एक विजुअल है, एक तरफ से, चारों तरफ से है तो ये एक तरफ से विजुअल है। जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो आपको दूर में मॉल दिखेगा। क्या वो मॉल की वजह से यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, या ट्रैफिक कैसे चलता है? पैदल जो चल रहे हैं लोग, उनको चलने में आसानी होती है कि नहीं? फ्रूट वेंडर्स की काम बढ़ गया है, उनकी बिक्री बढ़ी है, या ट्रैफिक की वजह से लोग कम रुक रहे हैं, कम फल ले रहे हैं? तो आपको ये सारी चीजें पूछनी है जब आप वहाँ पे जाओगे। तो अब हम चीमा से हम अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये भी एक और व्यू है चीमा का, जब हम चौराहे को क्रॉस करके छतरी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे एक तरफ आपके नर्सरीज हैं, दो बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज है, जहाँ से बहुत लोगों के घर में फूल वूल भी खरीदते होंगे। तो उनकी क्या कहानी है? उसके बगल में एक पेट्रोल पंप होगा, टाइटन का शोरूम है। और सामने की तरफ क्योंकि सड़क बन रही है, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स आपने देखा होगा जो बंद हो गया। और ये जो आगे हम गए तो ये एक अंदर रास्ता जाता है जो एक्सिस बैंक की तरफ जाके माता मंदिर की रोड को वो करता है। तो अब यहाँ से हम आगे चलते चलते पहुंचेंगे कौन सी जगह जो थोड़ा अभी बन रहा है, और वो है छतरी चौरा। तो अगर छतरी चौराहे में देखेंगे तो बहुत सारा काम हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, और आप सबको कुछ ना कुछ तो कहानी जुड़ी होगी इस चौराहे से। आपके दादा लोगों की भी कहानी जुड़ी होगी। अभी तो हम जब आए हैं तब वो स्टैचू भी था, हम सारी चीजें पहचानते थे उसी स्टैचू से कि हाँ हम काशीपुर में पहुंच गए। अब वो स्टैचू भी नहीं दिखता हमें। तो उस जमाने की कहानी होगी, अभी की होगी, फ्यूचर की भी एक हमारे उम्मीद है इस शोरूम से, इस फ्लाईओवर से। तो अब हम यहीं तक रुकेंगे, और ये हमारा साइट हुआ जो हर टीम को एक एक इसका भाग दिया जाएगा दोनों तरफ। आप रास्ते के राइट साइड पर देखोगे, लेफ्ट साइड भी देखोगे। और जब आप स्टोरीज लोगे या अपनी स्टोरीज लोगे
जैसे अगर आपका मिक्स ग्रुप है जिसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, आप पैदल चल के देखो तो लड़कियों का क्या एक्सपीरियंस होता है, लड़कों का क्या एक्सपीरियंस है, एक जैसा है? डू यू इक्वली फील सेफ ऑन द स्ट्रीट? रात को जाके देखो, अंधेरे कौन सी जगह लाइट है, कौन सी जगह नहीं है, कौन सी जगह अगर थोड़ा सा बैरिकेड होता तो हो सकता है पैदल चलने वालों को आसानी हो। इस पूरे रास्ते में बहुत कम जगह फुटपाथ है। तो जो लोग थोड़े से असहाय हैं या जो थोड़े चलने में जिनको तकलीफ होती है, वो कैसे नेविगेट करते हैं? अगर कोई ठेला वाला है, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ सामान पहुंचाना है, तो वो आजकल कैसे जाता है? पहले तो हो सकता है वो सीधे से, अभी भी हो सकता है वो डिवाइडर पे चढ़ के उधर उल्टे तरफ जाता हो। तो आप जब भी जाओगे, आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा इनिशियल ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो आप देख के आओ, आप बस खड़े रहो थोड़ी देर, देखो, चलो, गाड़ी से मत जाना, और गाड़ी से गए भी तो उसको एक जगह रख के चल के देखते हैं, ठीक है? दोनों तरफ जो भी आपकी साइड्स है उनको चल के देखना कि क्या है। तो ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं। पंकज सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फिर हम आगे का। पंकज सर। जो है इसमें जो बहुत अच्छी तरह से इसको फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आ गई हैं, और इसमें जो मेन जो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा वो अब एवरीबडी मस्ट बी एक्साइटेड कि अब क्या करना है, और अब इसके बाद मेरा कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन आपको दे दिया जाएगा। आई मीन आज शाम तक आप लोगों को सबको एक एक आपके जो एरियाज जो है डिमार्केट किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, और उसमें आप अपने, आज तो खैर आप खाली जो शुरुआत में जब आप संडे का दिन है, आप घूमो, एक चक्कर मारो, जनरली पूरा एरिया देखो। उसके बाद आपको शाम दोपहर के बाद आपको एक अपनी साइट दी जाएगी कि आपका लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। हो सकता है कोई दुकान यहाँ से दुकान ए टू दुकान बी, इतना एरिया है, तो रोड के दोनों साइड का टुकड़ा जो है आप ही का होगा। कोई भी क्वेश्चन पर ही है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम्स यहीं पर ही हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हैं। तो ये आप व्हाट वी विल हैव टू डू इज बेसिकली यू सी कि किस तरह से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं जगह, और उसको आप फाइनली आप उसको क्या दिमाग में आपके क्या आ रहा है कि इन लोगों ने कैसे कैसे अपना दिन व्यतीत करते हैं ये लोग, ठीक है? अपना दिन कैसे, हाउ डू दे पास द डे। कोई लोग हैं जो परमानेंटली वहीं पर ही है, कोई लोग है जो आके जा रहा है, कोई रिक्शे वाला है, तो कोई मुसाफिर है, There could be various people। तो हो सकता है आप शाम को जो है शाम को आप चाट भी खाने जा सकते हो, तो चाट वाले कहाँ पे लगे हुए हैं, ठेले वाले क्या कर रहे हैं, और उसी चीज को वो ठेले वाला रात को क्या हो के वहां पे पता लगा वहां पे आइसक्रीम वाला ठेला लग गया। तो ये जो चेंज हो रहा है ना पूरा दिन में, हर एक चीज में, सुबह के टाइम वो ठेले वाला लगा हुआ है जो फल बेच रहा है, हो सकता है दोपहर तक वो कुछ और आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो डिपेंडिंग, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, उस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो चेंज होती है दिन में, कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को आपको समझ के देन इसकी एक स्टोरी बनाने की कोशिश हमें करनी है। हो सकता है वो, और ये चीज खाली दिन में नहीं फर्क पड़ता, रात में, आई मीन दिन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है और सीजन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। हो सकता है आप इस मौसम में आप जाके कचरी खा रहे हो, क्योंकि फेमस होती है कचरी, अपने जो सिंघाड़े की कचरी बनती है, और वही चीज आप हो सकता है सर्दियों में कुछ और खा रहे हो, ठीक है? भुट्टे की कीस वगैरह आपको वहां पे मिल रही है। तो ये सब चीजें जो अलग अलग चीजों के टाइम पे अलग अलग सीजन के हिसाब से भी आप जरा सोचिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे कि पहले बताया कि जो पेड़ है, हो सकता है हमारे इस मौसम में कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ मौसम में हमारे जो पेड़ जो है उसी चीज में धूल मट्टी जम के वही चीज हमें नजर नहीं आ रही है। तो उस चीज को कितना उसमें उसकी शक्ल कैसे बदलती है वो देखना जरूरी है। अब अभी दिवाली आएगी, अभी दशहरा और दिवाली आएगी, ठीक है जी, तो उसमें कैसे ये चीज का कैसे रंग बदलेगा जगह का, धनतेरस आएगी, कैसे कैसे इन चीजों में क्या क्या बदलाव आएंगे, ये चीज भी थोड़ा सा दिमाग लेके चल। और जैसे कि बोला था कि भाई हाँ अगर कुत्ता है वहां पे तो उसका भी जरूर देखना, लेकिन खैर इट इज समथिंग व्हिच वी कैन थिंक अबाउट। ये नहीं है कि हम हर एक चीज के लिए एक जरूरी एक आइडिया है कि क्योंकि हम जब ये कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ आती है कि हर एक जन का एक महत्व है, वो हमने महत्व देखना है उसका।
वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन हु इज ऑन दैट स्ट्रीट। अगर वो ठेले वाला है, आप भी सब्जी ले रहे हैं उससे, और उसका काम भी वहीं पर ही है, और वो सब्जी वाला इसलिए नहीं वहां पे खड़ा हुआ क्योंकि वो जगह घेरना चाहता है, वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वहां पे बिक्री होती है, वहां पे रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, उसके बिना ये शहर का काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, और बस इस जगह पर खड़ी हो रही है, आप करें इसको साइड में भी नहीं कर दी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे आ रही है। जब उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है आपके वहां पे, और वहां पे लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, और वहीं पे ई रिक्शा मिल रही है, तो हमें उसकी जरूरत समझनी है, उसकी वजह समझनी है कि इसके बिना हमारा काम चलेगा क्या। आप अभी कह दो कि यहाँ पे बस आ रही है, देखो रास्ता ब्लॉक करके बैठी है, ठीक है, क्या आप कह सकते हो कि बस के बिना हम काम कर सकते हैं? शायद नहीं। वही चीज अगर हम कह दें कि यहाँ पे ठेले वाला खड़ा हुआ है, देखो देखो जगह घेर ली, हम ये तो कोई तो साइड में भी नहीं होता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या उसके बिना आपका काम चल सकता है? आप सब कुछ हटा दोगे वहां से, और किस किस को हटाओगे? तो एक जो है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया, आपने सुना, सबका साथ सबका विकास। जब ये सबका साथ सबका विकास आएगा तभी आप काम कर सकते हो, तभी एक उस जो शहर को एक रुख बतला सकते हो, एक उसका एक वजूद है। आप ये नहीं कह सकते वो ठेला वाला, देखिए अब वो काम हो गया उसका, हमारा फ्लाईओवर आ गया, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, ठेले वाले को हटा दो। अगर आप ठेले वाले को हटा दोगे या कोई और जो है मोची है वहां पे उसको हटा दोगे, तो आपका काम कैसे चलेगा दिन का? तो इन लोगों को देखना, इन लोगों को इनकी वजह वहां पे होना, ये सब चीजें समझने की बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर कोई चीज कहते हैं कि भाई हमारी जगह साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, तो कैसे हो जाएगी स्वच्छ? जब तक कि हम हर एक चीज की प्लानिंग नहीं करेंगे। ये अब जैसे कि हमने ठेले वाले को भी बोला, हमने ट्रक वाले को भी बोला, बस वाले को भी बोला, और साइकिल वाला भी चल रहा है, हर एक बंदा है वहां पे, और दुकान वाला भी है। अब हम अगर ये कह दें कि ये मेरी जगह है, तो फिर दूसरा बंदा कैसे काम करेगा? तो एक शेयरिंग ऑफ स्पेस एक बहुत जरूरी चीज है। शेयरिंग ऑफ स्पेस, कि ये मैं उसको इतनी जगह दूं तो इतनी जगह मेरी है और इतनी जगह इसके लिए है। तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि किसको कितनी जगह दी जाएगी। ये हमें देखकर उसको समझ के तभी हम ये इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि हर एक चीज के लिए एक जगह है। अगर वो पेड़ है तो उसकी भी एक जगह है और उसकी वजह है। यहाँ कोई कुर्सी है वहां पे जो बेंच लगाई हुई, तो उसकी भी जगह है, उसकी वजह है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फालतू में लगाई गई है या वो किसी ने आके वहां पे खड़ी कर दी। और आप कहते हो वहां पे कचरा है, तो किसी ने ये नहीं शायद सोचा कि वहां पे शायद एक डस्टबिन होना चाहिए था, या इन लोगों को एक जगह नहीं मिली जहां पे डाल लें, या कोई एक हम स्पेसिफाई कर दें कोई जगह। तो इन चीजों को हम अभी अपने नजरिए से देखते हैं। और एक बच्चे होने की वजह से की तौर से या एक बड़े होने के तौर से हर एक जगह की, हर एक की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आप ये नहीं कह सकते ये बुजुर्ग हैं, इनको गाड़ी में भेज के जाओ, इनका काम नहीं चलेगा, इनके लिए रास्ता नहीं है, इनको तो गाड़ी में लेके जाओ, हमारा काम नहीं चल सकता। क्या आप उनको हटा सकते हो? या कोई ठेले वाला जा रहा है, क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अब ठेले नहीं चलेंगे जी? जब उसकी रिक्वायरमेंट है, उतने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, हो सकता है 10 साल बाद ना हो, लेकिन फिर भी अभी तो है। और ये 10 साल आप कैसे काटोगे? क्योंकि 10 साल में आपका दिमाग भी थक जाएगा कि भाई अरे देखो ये सामने बीच में आ गया। और हमारी भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो ये है कि चलो फ्लाईओवर आ गया बीच में, हम सब लोग आज की तारीख में शायद हो सकता है कोई फ्लाईओवर के बारे में कुछ अच्छा ना बोल रहा हो, ठीक है जी। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्यों? शायद हो सकता है आपका रास्ता बंद हो गया हो तो आप बड़े परेशान हैं। तो किस तरीके से हो जाना चाहिए था, किस तरीके में हम सब लोगों का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। तो इन चीजों को लेकर हम अपना नया प्रोग्राम बढ़ाएंगे आगे। इसको, इस चीज को हम इस चीज को दिमाग में लेकर हम इसके बारे में और सोचेंगे कि ये अब हम उस, तभी हम कह रहे हैं ना कि एक पेड़ के हिसाब से सोचो, या एक चिड़िया के हिसाब से सोचो, या एक बच्चे के हिसाब से सोचो, एक बड़े के हिसाब से सोचो, या एक दुकान वाले के हिसाब से सोचो। कोई सा भी बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गाड़ी के हिसाब से सोचिए, गाड़ी क्या कहते हैं, इतने गड्ढे आ गए,
स्पीड ब्रेकर क्यों आ गए भाई, मैं तो आराम से चल रही थी। आप किसी भी हिसाब से सोचिए और उस चीज को फिर एक स्टोरी बनाने के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस मैम, मैत्री मैम। और बस एक चीज और, जैसे आखिरी में हमने पहले बोला ना कि हम कोशिश करेंगे कि जो आपने स्टोरी करी उसका एक कोई आर्टिफैक्ट या आर्टलाइज्ड वो रोड के ऊपर हो, जब जो हम 2 अक्टूबर को आपकी टीम की तरफ से वहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो अभी 2 दिन जो है ना, आपको जितनी भी स्टोरीज, शुरू से ही मत एक उसमें जाना कि हमें यही स्टोरी बतानी है। जितनी भी स्टोरीज आपको मिल रही है आप सारे नोट कर लेना, अपना आप जो फील कर रहे हो वहाँ पे वो सारी चीज़ें नोट कर लेना। फिर उसमें से बाद में बैठ के सोचना कि हम किस चीज़ को एलैबोरेट करके स्टोरी बनाएंगे जो हमारे आगे की तरफ भी जाएगा। अभी 2 दिन एकदम खुले दिमाग से, एकदम एक्सप्लोरेशन के उससे जाके देख के आना, और सब लोगों से पूछना कि उनको अगर ये सड़क अपनी लगती है तो क्यों लगती है, और उसको अपना बनाना है तो कैसे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि डस्टबिन लगाएंगे तो डस्टबिन, तो किस तरीके से उनसे कौन सी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए। यहाँ पे नाली ओवरफ्लो करता है तो इसको ठीक कर देंगे तो ये सड़क और अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे स्मूथ कर देंगे तो गाड़ी इधर से उधर इजीली चली जाएगी। तो जब वो करोगे तो वो सारी चीज़ें भी देख के आना, वहाँ से पूछ के आना। अभी बस भूख लगी होगी सबको। अनन्या मैम, मैत्री मैम, जस्ट एक चीज ऐड करनी है जो ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्पफुल होगी। कुछ लिंक्स है, कुछ रेफरेंसेस है जहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन इजीली कलेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और प्रेजेंटेशंस भी ज्यादा अच्छे बना सकते हो। वो स्लाइड हम अनन्या मैम के साथ शेयर करेंगे और सबको बोलेंगे। बट आप लोग मीरो बोर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है जो इजीली अवेलेबल है सबके लिए, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के वक्त हेल्प कर सकता है। तो आप वो देख सकते हो, आप उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कॉन्वर्सेशंस रख सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, तो पूरे ग्रुप के साथ ये शेयर हो सकता है। तो ये एक चीज आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये एक चीज मुझे अभी इंट्रोड्यूस करनी थी, एटलीस्ट नाम रहेगा आपके पास तो आप थोड़ा सा कुछ देखोगे उसके बारे में, और जब आप स्ट्रीट पे जाओगे आपको काम आएगा शायद कलेक्ट करने को कि क्या हो रहा है। और मैंने फोटोज, साउंड, वो सब भी इकट्ठा करते रहना, मैंने शुरू में, बाद में आपको फिट करने में आसानी रहेगी। लोगों से जो बात कर रहे हो उनकी परमिशन लेके उनके फोटो खींचना, उनके कॉन्वर्सेशंस। अच्छा, सोनल वो नाम पहले टाइप कर दोगे चैट पे? कोई पूछ रहा था मीरो। हाँ यस, मैं टाइप कर स्पेलिंग। हाँ, सो अनन्या मैम अभी Sunal, even the idea of telling the story through stop motion, I think we missed all that. वो भी chat में डाल देना। वो तो स्टोरी टेलिंग डिफरेंट मीडियम्स। अभी तो हमने एक एग्जांपल दिखाया था वीडियो वाला, तो आप पहले इकट्ठा कर लीजिए, पहले नैरेटिव फिक्स कर लीजिए, फिर उस स्टोरी को कैसे बताना है उसके बारे में, उसमें हम सब आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। We'll guide you in that. Yes, we can take that after they collect the stories. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. It was a really wonderful presentation. And so we come to the end of this presentation today. So on behalf of Setu, I would like to express my gratitude to distinguished resource persons, special invitees, guests, and eminent speakers who spared their time to enlighten and guide us in our effort. That is Setu 2021, Sustainable Cities and Development. And henceforth, Streets for me is going to take off officially if we look forward to your guidance of our eminent resource persons. So thank you. The next session for Streets for Me is scheduled on 21 September 2021 at 6 p.m. The link and details will be shared soon. Until then, stay healthy and stay safe. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. And the team who asked which software also said that they have some other software. So it's okay to use anything. Miro board is just a suggestion. It's not like everyone has to use it. It is just a
input that whoever wants can use it, and जो तुम्हारे पास है वो तुम लोग use कर सकते हो, और कोई तरीका है जो तुम्हें आता है वो ज्यादा easy है वो करो, वो पूरा flexible है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही use करना है. That's it. Thank you everyone. Thank you everyone. Namaste, Okay. Dr. Bye.